Good evening, everyone. I am Pavan Lauti, founder and director of Stone World, and on behalf of Team Stone World, I welcome you all to our Insta Live series, The Design Talk. Stone World owns the Central India's biggest showroom of natural stones, where all the products related to wall, floor, and ceiling are displayed live. We work on the concepts which can be customized as per the theme, liking, and design of architects and end users. Customization of any product is key for us, and with an experience of over more than 18 years and creative designing team, we work on the concepts which can be customized. I am pretty excited to share that we have launched the Design Talk, an Instagram series aimed to bring new ideas, thought process, and inspiration from renowned architects, interior designers, and landscapers of India. On the sixth live session of this series, today we have with us a very renowned architect from Indore, architect Ruchir Tiwari, founder and principal architect of Architecture Basics, who has an experience of residential, commercial, hospitality, corporate houses, architecture, and interior designing. He got award in 2018 for Best Commercial Project for Pictures by Indian Architect and Builders magazine. Again in 2018, he got the award for Best Commercial Space Design for Pictures, which was given by Cucina and Dainik Bhaskar. He got award for Best Dream Home in 2017 and 2021 by Ultratech. Ruchirji has keen interest in minimal practice in architecture and deep love towards vernacular architecture. He loves to work with natural materials like lime and earth. He did various community projects and services in Andhra Pradesh and Himachal Pradesh for local community by building their houses with local material and vernacular construction techniques. Recently, he is working in Ladakh for a community service where he is working with stone, lime and earth. He is into contemporary architecture too, for which he won this year ICI Ultratech Award for Best Dream Home Design in Shujalpur. Welcome Ruchir sir. Welcome to the show. Let me join Ruchir ji. Ruchir ji, please send me a request for joining. As a request. Welcome Ruchir sir. Welcome to the show. I think you're not audible. Sir, you're not audible. So you're not audible. Can you hear me, sir? Sir, I think I cannot hear you.
Yeah, your voice is too low. Hello? Hello? Hello, Namaskar, Pawanji. Am I audible now? So your voice is not coming. I can hear you, but I can hear you. Yeah, my voice is clear, but your voice is not coming to me. It's very low. Okay, give me 5 minutes. Yeah. I think it's problem with me because people are saying we can hear you. Let me check it. Hello, Pawanji. Now, am I audible? Just a moment, sir. Yeah, Hello. yeah. Now it's okay. So the problem was with me, please. Oh, thank God. Welcome, sir. Sorry for some disturbances. Welcome again. That's okay. Thank you. So, Thanks sir, for coming. let's start with our show. Yeah. सो जनरली सर पहला क्वेश्चन हम सबसे ये पूछते हैं कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड व्हाइल स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट? Uh, सबसे पहला जब भी कोई टास्क मेरे सामने आता है तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट आई हैव एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट को यूज कौन करने वाला, हु आर द यूजर ऑफ दिस डिजाइन प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट मैं जो इस पूरे प्रोसेस को लेके जाता हूँ ऑन पेपर जब हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस रिक्वायरमेंट के साथ साथ जब हम उस पूरे प्रोजेक्ट का फंक्शनैलिटी स्टडी करते हैं तो हम उस समय मुझे ये पता होता है या उस समय मुझे ये पता चलता है कि इसको मुझे फॉर्म बेस्ड बनाना है या फंक्शन बेस्ड बनाना है। एंड आफ्टर दैट वंस आई हैव डिसाइड कि ये प्रोजेक्ट का नेचर किस तरीके से जाने वाला है, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। सो दिस इज माय वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी टू डिजाइन एनी काइंड ऑफ थिंग। इफ यदि मेरे पास यदि रेसिडेंस आएगा तो मैं उस रेसिडेंस में रहने वाले लोगों को इवैल्यूएट करूंगा, वो किस तरीके के नेचर रखते हैं, किस तरीके का लाइफस्टाइल है डेफिनेटली, एंड आफ्टर अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल आई विल प्रपोज सम डिजाइन फ्रॉम माय साइड टू देम ऑफ कोर्स। सिमिलरली कोई पब्लिक प्लेस यदि मेरे पास आता है तो डेफिनेटली उसमें फॉर्म के साथ साथ मुझे फंक्शनैलिटी भी उसको देख के ही काम करना होता है। सो इन दैट केस फंक्शनैलिटी कम्स फर्स्ट। इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी आई नीड टू चेक कि ये किस तरीके की पब्लिक बिल्डिंग है, किस तरीके का पब्लिक स्पेस है, इसके यूजर्स किस तरीके से होने वाले हैं, इसके यूजर्स किस एज ग्रुप के होने वाले हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, एंड आफ्टर दैट उस बिल्डिंग का फॉर्म किस तरीके से होने वाला है। उस पूरे इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके हम इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। तो सिमिलर ये सारी की सारी थ्योरीज जो है हम हर प्रोजेक्ट लाइन पे इसको डिराइव करते हुए फॉलो करते हैं। So this is my methodology to start any kind of work. बेसिकली सर घर में जो भी लोग रहने वाले हैं अगर वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी पूरा डिजाइनिंग में हेल्प आता है?
यस ऑफ कोर्स, हर व्यक्ति का एक रहने का तरीका होता है, हर व्यक्ति का जो घर होता है उसकी लैंग्वेज होती है, उसका एक पर्सनालिटी होता है। तो डेफिनेटली वो जहाँ रहने वाला है, जो स्पेसेस वो यूज करने वाला है, तो हमको उसको उसी तरीके से यदि हम उसको डिजाइन करके दें तो वो उस स्पेस पे जाने से पहले ही वो फैमिलियर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सो जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही होती है, जब हम उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एक डिस्कशन के साथ साथ उनके रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ हम उनको साइकोलॉजिकली भी हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक बार जब हम उनकी पूरा फैमिली स्ट्रक्चर को, उनका रहने के तरीके को, उनका इवन छोटी छोटी जो बातें होती है, लाइक जो घर की महिलाएं होती हैं उनका काम करने का जो तरीका होता है, लाइक सुबह उठने से लेके शाम को वापस सोने जाने तक का जो एक व्यवहार होता है उनका, उस तरीके को हम स्टडी करते हैं, उनके एक साइकोलॉजिकल अप्रोच को पता करने की कोशिश करते हैं। एज पर देम हम फिर उनका एक बेसिक प्लान लेआउट हम तैयार करके देते हैं, तो हम उसके बेसिस पे फिर वो डेवलपमेंट चलता जाता है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया था जिसमें उनमें उनके पेरेंट्स थे, वयोवृद्ध थे काफी। तो उनका सबसे पहला जो उठते ही जो दादी माँ थी, उनका ऐसा था कि वो घर के बाहर उनको जाना होता था और सूर्य देव को उनको नमस्कार करना होता था। ये उनका बहुत सिंपल सा एक मेथड था। तो हमने कोशिश किया उनकी बातों को समझते हुए कि उनका रूम इस तरीके से प्लान करें कि वो सीधे सीधे उनको एक लॉन में अप्रोच मिल जाए, जहाँ पे उनको ईस्टर्न फेस आपका घर मिल जाए, मतलब एक पूर्व दिशा को वो सीधे सीधे देख पाए और वो जो चाहती है वो काम सीधा सीधा हो जाए। एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किस तरीके से साइकोलॉजी और उनके लाइफस्टाइल को स्टडी करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। सो ये कोई हमको स्पेसिफिक यदि जरूरी नहीं ये बताएगा, ये हमको उनकी जो छोटे छोटे जो इनपुट्स होते हैं, ये सारी चीजों पे हमको ध्यान देते हुए काम करना होता है। ओके तो सर। दिस इज माय वे टू डिजाइन। सर आपने अभी तक बहुत सारे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटलिटी, फीचर्स, काफी नाम सुनते हैं लोग हम, तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए सर। आज तक अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज योर फेवरेट प्रोजेक्ट टिल डेट, तो आपको कौन सा होगा सर और क्यों होगा सर? आपको क्या ऐसा था, आपने क्या ऐसा डिफरेंट किया जिसके लिए आप बहुत आप पसंद करते हैं उसको? वैसे ये हर आर्किटेक्ट का कहना होता है कि उसका अगला आने वाला प्रोजेक्ट उसका फेवरेट होगा। क्योंकि बट अभी तक यदि मैं देखूं तो पिक्चर्स इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। अगर मैं कुछ कमर्शियल स्पेसेस की यदि बात करता हूं तो, क्योंकि मैंने उसमें काफी कुछ रिसाइकल स्किल मटेरियल्स को यूज किया था। जंक यार्ड की काफी खाक छानी हमने, खूब काले पीले होते थे। एंड यस, सबसे पहले हमको ये था कि हम एक जंक यार्ड को एक पब्लिक स्पेस में, एक हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में हम यूज करने जा रहे हैं। तो आई डोंट नो इंदौर में इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। एंड मेजर चैलेंज वाज कि मेरे पास उतने स्किल्ड लेबर नहीं थे, बट थैंक्स टू माय वेरी सपोर्टिव टीम हम वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 2:30-3 बजे तक काम कर रहे होते थे। लाइक वेल्डिंग से लेके हमने कई जॉइंट्स वहाँ पे, वेल्डिंग के साथ में कई जॉइंट्स हमने वहाँ पे वर्कआउट किए एंड डिफरेंट पेंट फिनिश हमने डिजाइन करी, सारी चीजें। तो मतलब काफी हैंड इन हैंड जॉब हुआ, लेबर के साथ मिलके काम करा। तो जब आप इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप जब कर रहे होते हैं तो आपको अपना प्रोफाइल हमेशा भूलना होता है। आप इस तरीके से साइट पे नहीं जा सकते कि आपका एक प्रोफाइल है, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपको ये नहीं करना है, या आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं, आप सिर्फ वहां पे जाके सिर्फ वहां बता सकते हैं। आपको इक्वली उनके नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरीके से हो सकता है। डेफिनेटली आप इस मामले में यदि मैं आपको बताऊं पवन जी, तो वो जो काम करने वाला लेबर है वो आपसे सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वर्किंग में आपसे हमेशा 2 स्टेप ज्यादा नॉलेज होगा। तो आपको वो ब्रिज को समझना पड़ेगा, उस ब्रिज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उस ब्रिज को आप तय करते हो उस व्यक्ति जो आपके लिए काम कर रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस पे जाके कि वो किस तरीके से काम करेगा। आपको अपना डिजाइन वहां पे एक्सप्लेन करते हुए वो काम करना होगा। उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं कि अगर ये वेल्ड में कर रहा हूँ तो इसको इस तरीके से वेल्ड करना होगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जब आप इस तरीके की बेसिक थॉट के साथ आप जाते हैं तो वो काम वो आप जो अगला जो लेबर है वो आप उससे बहुत आसानी से करवा सकते हैं। ये तो हुई एक बेसिक वर्किंग की बात। अब आता है कि व्हाई दिस इज वेरी, मैं काफी जंक यार्ड इसमें यूज किया था, दैट टू वेरी मिनिमल अप्रोच के साथ। ऐसा नहीं था कि अगर मुझे जंक यूज करना है तो मैं वहां पे कुछ भी बना दूंगा।
डेफिनेटली वहाँ एक डिजाइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोई भी चीज वहाँ पे मैं एक्सेसिव ना कर दूं, सो दैट वो क्योंकि वो स्पेस एक तो क्या है कि अगर मैं साइड कंडीशंस की बात करूँ तो मेरे पास बहुत लो सिल था, लो लेवल स्लैब हाइट्स थे। तो मुझे इस तरीके का सीलिंग क्रिएट करना था कि वहां पे एक उसकी हाइट को मैं उसको नुकसान ना पहुंचाते हुए एक काफी उस सरफेस को इनहेंस करते हुए काफी एक इंटरेस्टिंग सा एक सरफेस उसके पैरेलल वहां पे क्रिएट कर सकूं, सो दैट मैं वहां पे उसके इलेक्ट्रिकल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ जो सर्विसेज हैं उसको भी वहां पे प्लान कर सकूं। तो कुल मिला के आप देखिए तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, बट इसमें जितने भी स्किल्स थे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन के, वो हमने यहाँ पे यूज करी इन टेक्निकल टर्म्स। तो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्रोजेक्ट वेरी मच। ये हुआ एक कमर्शियल मैनर की बात। रेसिडेंशियल्स मैंने काफी किए हुए हैं, लेकिन कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी अच्छे लगते हैं मुझे। लाइक एक मैंने शुजालपुर का प्रोजेक्ट किया था जिसमें रिसेंटली आई गॉट अवार्ड फॉर दैट। तो उसमें हमने काफी क्रॉस वेंटिलेशन पे हमने काफी काम किया। लाइक वहाँ पे एक सेंट्रलाइज एक कोर्टयार्ड हमने उसको बनाया, दो विंग्स में उस पूरे रेसिडेंस को प्लान किया, एंड डेफिनेटली स्टोन क्लैडिंग एंड कई नेचुरल मटेरियल्स हमने वहाँ पे यूज करने का हमको मौका मिला। तो दैट्स व्हाई आई लाइक दैट प्रोजेक्ट आल्सो। या ग्रेट सर, डेफिनेटली अगर हम फीचर्स की बात करें, इट हैज रियली कम आउट वेरी वेल और आज एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। वो काफी लोग एंजॉय करते हैं वहाँ पे जाके, एक बहुत ही बड़ा हब हो गया है वो पार्टी लवर्स के लिए। और शुजालपुर की बात करूँ तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद यू ऑन दैट ऑफ प्रोजेक्ट, कोर्स, दैट ऑफ वाज रियली कोर्स। गुड फॉर अस। So coming back to our topic for today, अगर हम या मिनिमम या मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर एंड व्हाट मेड योर इंटरेस्ट इंट्रिग टुवर्ड्स मिनिमलिज्म आर्किटेक्चर। आपको ऐसा क्या लगा सर कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं? इसमें बहुत सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ कि मिनिमलिज्म को कभी भी सिर्फ आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग के डायरेक्शन में कभी नहीं सोचना चाहिए कि मिनिमलिज्म है तो सिर्फ ये दो ही फील्ड में हम इनको यूज करेंगे। बेसिकली मिनिमलिज्म इज अ लैंग्वेज। आप अपने लाइफस्टाइल को देखिए, चाहे आप अपने रेसिडेंसेस को लीजिए, आप अपने यूजेबल स्पेसेस को लीजिए, यू कैन फॉलो दैट लैंग्वेज ऑल्सो। एंड यस, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ जो मैं काम करता हूँ कि व्हाई मिनिमलिज्म ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी, तो ऐसा है कि मेरे नजरिए में कोई भी एक चीज है उसको कितने मिनिमम तरीके से मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, ये मैं हमेशा सोचता था। जरूरी नहीं है कि मुझे कोई भी अगर मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में भी बात करता हूँ तो मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई भी चीज कहनी मैं करता हूँ, तो सेम चीज मैंने अपने इसको वर्किंग स्टाइल में लाने की कोशिश करी। लाइक इफ आई फॉलो इफ आई हैव टू डिजाइन ड्राइंग रूम, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई इसका नेचर क्या है, इस पूरे स्पेस का नेचर क्या होगा, किस तरीके का इसका यूज होना है। उस यूज को लाते हुए हमने वहां पे उतना मिनिमलिस्टिक वे में जितना हमको वहां पे मिनिमम से मिनिमम वहां पे फर्नीचर प्लेस करना है, दैट टू इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज ये होता है पवन जी, मैं आपको यदि बताऊं तो लोगों को कई बार लगता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो घर अच्छा कैसे दिखेगा। बट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि अगर आप पर्टिकुलर स्पेस की लैंग्वेज को मेंटेन करते हो, अगर आपने एग्जैक्टली वही काम किया, तो वो चीज अपने आप वो डिफाइन होने लगती है। सो ओवरऑल यदि आर्किटेक्चर की यदि बात करूं तो डिफरेंट स्पेसेस को मैंने एक दूसरे से लिंक किया मिनिमम वे में, एंड वो अप्रोच बहुत सही गई कई दफे। डेफिनेटली जहाँ पे इस मिनिमल अप्रोच में कई स्पेसिफिक रेंज होती है जिसको आपको पता करना बहुत जरूरी होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें किस तरीके के एलिमेंट्स आपको डालने हैं। उसके लिए हम अलग से बात कर सकते हो क्योंकि वो बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाता है। लाइक तो हम एक छोटा सा एग्जांपल होता है, स्ट्रेट लाइंस के साथ आप जितना जाएंगे, आप एक ही तरीके के कलर्स आप जिस तरीके से आप यूज करेंगे, कुल मिला के ये है कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का आपका एक बहुत बोल्ड तरीका होना चाहिए। मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट कि हाँ कोई भी चीज बहुत छोटा सा कर दिया और वो काम हो गया। मिनिमलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना बहुत टफ जॉब है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज को हम यदि परफेक्टली यूज करें, नॉट मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ मटेरियल्स। दो या तीन स्टैंडर्ड मटेरियल्स होंगे जो आपके पूरे डिजाइन को फॉलो कर रहे होंगे, और उस मटेरियल को यूज करते हुए आप अपनी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन करते हैं। सो
दिस इज द मेन चैलेंज इन द मिनिमलिज्म, और यही चैलेंज मुझे बहुत पसंद है। एंड आई ऑलवेज थॉट कि किसी एक या दो चीज के साथ इस पूरे रेसिडेंस को मैं किस तरीके से प्लान कर सकता हूँ, या किसी भी डिजाइन को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, सो दैट यूजर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में जाके खो नहीं जाए, कि उसको ये सोचना पड़े कि मैं सीलिंग पे देखूं, फ्लोरिंग पे देखूं, कि दीवारों को देखूं, कि फर्नीचर को देखूं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा एक वो जब यू नो इट्स जस्ट लाइक अ सॉन्ग, जब आप एक रिदम में जाते हैं तो वो रिदम आपको शुरुआत से लेके लास्ट तक मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर, दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट इन माय डिजाइन, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस इट। बट डेफिनेटली अभी भी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक उस हाइट को या उस पर्टिकुलर एक लेवल को अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। स्टिल मुझे काफी कुछ सीखना है कि इसको किस तरीके से अभी परफॉर्म करते हैं। Yeah. So basically, we can say less is more. Yeah, less is more, of course. So, what are the different ideas or thought process you can suggest to achieve a modern minimalism home? किस तरह के थॉट्स, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, जैसे See, आपने काफी बताया। def जी, uh, सबसे पहले इसको शुरू कर, जो भी इस चीज को इस पूरी मिनिमलिस्टिक अप्रोच को जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी इसको परफॉर्म करना शुरू करता है, तो डेफिनेटली सबसे, अगर मैं आर्किटेक्चर के टर्म में यदि बात करता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है द यूजेबल मटेरियल्स। मटेरियल के भी पहले यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है कि वो स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से बना रहे हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ तो मुझे सीधे सीधे सिर्फ स्ट्रेट लाइंस ही खींचनी है, मैं कर्व्स का यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने एक कर्व भी यूज कर लिया तो ये मिनिमलिज्म के एस्पेक्ट से बाहर हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो जब आप मॉडर्न होम्स के टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट लाइंस में ही काम करना है, बट आप इस चीज को आप ध्यान रखिए कि आपको एक लैंग्वेज फॉलो करनी, एक फॉर्म फॉलो करना है, एक शेप फॉलो करना है। उस शेप को बनाने के लिए जो जितने भी उसके टूल्स हैं, लाइक लाइंस, पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें आपको उस तरीके से करनी है। यस, आप फोकल पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, कोई एज अ फोकल प्लेन आपको यदि कोई क्रिएट करना है, तो यू कैन गो विद द डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट शेप्स फॉर नॉट मोर देन वन और टू, बट उसके लिए भी आपकी प्लानिंग स्किल्स होने चाहिए। ये हो गई प्लानिंग एस्पेक्ट्स की बात, ये हो गया एक ओवरऑल सुपर स्ट्रक्चर की बात। अगर मैं अब इसको मटेरियल के टर्मिनोलॉजी में बात करना चाहूँ, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। मिनिमलिज्म जब शुरू हुआ था 1950s में, तो हमें ये बोला गया था इस थ्योरी में कि इस पूरी थ्योरी के जो मेजर मटेरियल होंगे, दैट विल बी ग्लास एंड स्टील। तो ये आज की थ्योरी हम इसको बिल्कुल फॉलो करते चले आ रहे हैं कि मिनिमलिज्म है तो ग्लास होगा, वहां पे लोहे का प्रयोग बहुत होगा, आयरन का प्रयोग बहुत करना पड़ेगा हमको, या डिफरेंट कोई क्लैडिंग शीट्स होगी जो जो जिसका यूज करते हैं, हम स्लीक से स्लीक डिजाइन बनाते चले। डेफिनेटली ये कई मामलों में सही बैठता भी है, बट मैं अगर मेरी पर्सनल सोच के बारे में यदि बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये दो स्पेसिफिक मटेरियल्स को लेते हुए, या इसके यदि बियॉन्ड यदि हम बात करें, तो भी हम इस चीज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्लीकनेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मिनिमलिज्म अप्रोच। आप अपने मॉडर्न होम्स भी बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन आप बिल्कुल इंडियन आर्किटेक्चर की थ्योरीज को फॉलो करते हुए भी आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं। बट यस, मॉडर्न होम्स की यदि आप बात करते हैं, कंटेम्प्रेरी डिजाइन की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे कई कंटेम्प्रेरी मटेरियल्स आते हैं, बट आपको अगेन थ्योरी ऑफ मिनिमलिज्म को फॉलो करते हुए चलना है। Sir, sir, how simple or difficult it is to practice minimalism architecture? यस, मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करना बहुत टफ जॉब है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे कम एफर्ट में अपने को एक्सप्रेस करना है, लाइक, तो मेरे नजर में इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपके पास दो चैलेंज होते हैं। एक तो सबसे पहले कि आर यू गोइंग टू अचीव मिनिमलिज्म थ्रू योर डिजाइन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूरा का पूरा जो चैलेंज होता है, दैट इज फॉर आर्किटेक्ट ओनली, और यू कैन से फॉर इंटीरियर डिजाइनर ओनली।
आर्किटेक्ट तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्ट अगर सिर्फ वो सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वो एक कोई फॉर्म बेस्ड यदि बिल्डिंग यदि तैयार कर रहा है, बीट अ रेसिडेंशियल, बीट अ कॉर्पोरेट, बीट अ कमर्शियल थिंग, तब तो उसके पास बहुत सारा एक तरीका होगा कि वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करे। एक सटल एक फॉर्म लेके, एक सर्टेन फॉर्म लेके वो उसके ऊपर काम कर सकता है। बट अगर मैं इंटीरियर डिजाइनर्स की बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा इंटीरियर डिजाइनर्स को, लेट मी टेल यू पवन सर, कि इंटीरियर डिजाइनर्स को बहुत इंपॉर्टेंटली मटेरियल सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स करना पड़ेगा। अब उनका सवाल ये बहुत जेन्युइन हो सकता है कि आपके सुपर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग फॉर्म बनाने में तो बहुत लिमिटेड आपको ट्रीटमेंट्स हैं, आपके पास बहुत स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं, यू कैन डिफाइन वेरी स्पेसिफिकली योर द फॉर्म एंड योर लैंग्वेज। बट हम तो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, हम क्या करेंगे? तो जब मैं खुद भी इंटीरियर डिजाइनिंग जब मैं कर रहा होता हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ इस चीज का, और दैट टू जब मेरे पास में यदि ये चैलेंज होता है कि मेरे को किसी स्पेस को यदि मिनिमलिस्टिक वे में यदि डिजाइन करना है, तो डेफिनेटली मेरे को सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंटली उसको एक तरीके से देखना होता है। अब बात आती है कि कैसे। तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल्स अलग अलग हैं, आपको अलग अलग तरीके से आपको यूज भी करना है, सब सारी चीजें हैं, तो आपको डेफिनेटली मटेरियल के टेक्सचर्स, मटेरियल के टाइप्स, मटेरियल के कलर्स और उनको लगाने का तरीका, प्लस प्लस जो बिल्डिंग की जो एक बेसिक लैंग्वेज चल रही है, लाइक जो शेप चल रहा है, जो आपने जो थीम डिसाइड कर रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही वहां पे काम करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने फ्लोर आपने कुछ ग्रे कलर का बनाया, आपने वॉल कोई रेड कलर की बना दी और ग्रीन कलर का वहां पे सीलिंग आ गया, सडन वहां पे कोई वुडन डूअर्स आ गए। दिस इज नॉट द वे टू प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। क्यों? मेरे नजरिए में जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ, कि अगर मैं मुझे इन सब चीजों को यूज भी करना है, तो उस वहां पे मेरे को एक लैंग्वेज फॉलो करनी पड़ेगी, दैट इज ओनली द कलर स्कीम्स एंड द टेक्सचर ऑफ मटेरियल, सो दैट मुझे वहां सिर्फ एक या दो चीजें मिले जिसको मैं वहां पे देख के सीधे सीधे फॉलो कर पाऊँ। और डेफिनेटली कई तरीके के शेप्स मैं डेफिनेटली यूज नहीं करूंगा। एक फ्लो के हिसाब से मुझे वहां पे जैसे जाना है, तो फ्लोर एंड वॉल्स एंड सीलिंग्स को उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान करूंगा, एंड फिर उसको धीरे धीरे एक तरीके से मैं डिजाइन करता चलूंगा। तो ये हर जगह ये लैंग्वेज इसी तरीके से ही काम आती है। आप चाहे अपना रेसिडेंस आप डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप अपनी कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी क्यों ना डिजाइन कर रहे हो। सो दिस इज माई थॉट ऑन दैट। सर आपने मटेरियल की बात करी तो आई वुड लाइक टू आस्क यू रिलेटेड टू दिस ओनली कि हाउ नेचुरल स्टोन्स हेल्प यू इन अचीविंग दिस मिनिमलिज्म इन योर प्रोजेक्ट्स। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन पवन सर, क्योंकि स्टोन के साथ जो सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है, द मास। स्टोन इज अ हैवी एंड मैसिव एलिमेंट ऑन अर्थ एक्चुअली देखा जाए तो। अब इम्पोर्टेंट है कि आप मिनिमलिज्म आप यूज बात तो कर रहे हैं, आप बात ये भी कर रहे हैं कि उसके तो दो मेन फीचर्स हैं, दैट इज ग्लास एंड आयरन, जो आपको बहुत स्लीक एंड एक ट्रांसपेरेंसी देते हैं। तो स्टोन कहाँ से आ गया, हम उसको कैसे यूज करेंगे? तो जाहिर सी बात है, उसका स्टोन अपने आप में बहुत मैग्निफिसेंट एक एलिमेंट है, जो डेफिनेटली एक नेचुरल मटेरियल है, धरती माता ने हमको दिया है। हम उसको उस चीज को किस तरीके से यूज करते हैं, हमारे बिल्कुल हमारे डिजाइन स्किल्स और हमारी सोच और समझ के ऊपर, और हमारी डेफिनेटली हम उसको किस तरीके से किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, वो हमारी उस समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको मिनिमलिज्म के रास्ते में हम देखना शुरू करते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। तो मैं बहुत सिंपल मैनर में बात करता हूँ कि डेफिनेटली स्टोन्स आर वेरी मैसिव थिंग। आप उसको उस तरीके से आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं कि आप मैंने एक आयरन स्ट्रक्चर यदि बनाना है, तो मैं वहां पे कुछ स्टोन के हिसाब से वहां पे कुछ स्टोन को उस जगह पे रख के देखूंगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, आप मिनिमलिज्म कैसे आप अचीव करोगे? तो जाहिर आप तो जो मेरी समझ कहती है, जो मेरा तरीका कहने का, कि आप जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, वहां पे फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहां पे लॉन्ग स्पान्स आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। जो मेजर फीचर्स होते हैं, लाइक जैसे ह्यूज कॉलम पायर, जो कॉलम स्ट्रक्चर हुए, या आप स्टोन पायर से भी आप वहां पे यूज कर रहे हैं, तो वो आप काफी एक सर्टेन स्पेसेस पे आप यूज कीजिए। उनका एक रिपीटेशन होगा, उनका एक रिदम होगा, आप उसको उस तरीके से डिजाइन किए। अब बिकॉज स्टोन का एक अपना एक ह्यूज आइडेंटिटी है, ट्राई नॉट टू यूज अदर एलिमेंट्स मेजरली।
लाइक अगर मैं पूरा बेस स्ट्रक्चर या कोई एक सब स्ट्रक्चर या एक सुपर स्ट्रक्चर मैंने स्टोन का बनाया, तो मैं उसके साथ जो सपोर्टिंग एलिमेंट है ज्यादा से ज्यादा उसका एक बहुत लाइट वेट मैं वहां पर एक रूफिंग स्ट्रक्चर या एक वहां पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जो डेफिनेटली जो मिनिमलिज्म का जो दूसरा डिफाइंड मटेरियल, जो मेजरली डिफाइंड मटेरियल, दैट इज आयरन। सो आई विल गो विद दैट। एंड जो इंटरनल जो यदि ब्यूटीज की बात करूं, तो डेफिनेटली स्टोन अपने आप में ही उसने एक वर्टिकल प्लेस वहां पे क्रिएट कर दिए होंगे, तो आई वोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लैडिंग वर्क एंड एवरीथिंग। फ्लोर के लिए डेफिनेटली मैं उसी स्टोन का वहां पे नेचुरल जितना भी स्टोन है उसी तरीके के टेक्सचर्स को, कलर स्कीम्स को मैं वहां पे यूज करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टोन मैंने पूरा का पूरा एक मैसिव स्ट्रक्चर, मैसिव एलिमेंट को यूज किया, बट using only one element I can create and I can go for the minimalistic approach actually. So this is my approach. Nice, sir. So when you say natural construction techniques and materials, what do you mean by it? See, ये definitely बहुत important question है आज की डेट में, because I follow a Gandhian theory on that कि कोई भी particular site का material उसके 5 miles की radius में आ जाना चाहिए. So famous architect Mr. Laurie Baker, वो उन्होंने भी इस थ्योरी को काफी फॉलो किया। उन्होंने कई मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर साउथ में बनाए जो आज भी देखने को मिलते हैं। एंड यस, जिस हिसाब से हमारा जो क्लाइमेट है एंड जिस हिसाब से तेजी से हम एक्सपांड कर रहे हैं एज अ ह्यूमन स्केल, जो हमारा एक्सपांड होता जा रहा है, कई तरीके के हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, हम जिस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमें उस चीज को मिनिमाइज करने की बहुत जरूरत है। एंड यस, वहां पे फिर ये सारी चीजें आती है कि नेचुरल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स किस तरीके से आती हैं और क्या आती है। अब नेचुरल टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की यदि बात करूंगा तो मैं जाहिर सी बात है कि वहां पे नेचुरल मटेरियल्स का अपने आप इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो नेचुरल मटेरियल्स की यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे पास डेफिनेटली बहुत प्यारा मटेरियल है, दैट इज अर्थ एंड लाइम। एंड कई मायनों इन दोनों को यूज करते हुए हम कई सारी चीजें हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बैम्बूज है, बैम्बू कंस्ट्रक्शन है, सो मेनी थिंग्स दैट। सो व्हेन यू यूज दीज मटेरियल्स, इनके जो एक सटल तरीके हैं जिनके साथ आप काम करते जाते हैं, तो ये दीज ऑल आर वेरी हेल्पफुल इन अवर मॉडर्न डे लिविंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स एक्चुअली। सो आई बिलीव कि यस, जिस तरीके से हम हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, तो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट बैक टू आवर पास्ट। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ मटेरियल इन आवर डे टू डे लाइफ। So I still believe, or I always try to incorporate these kind of small techniques and small part of construction in my regular designing works. So लेकिन जब that's what I हम think about अर्बन it. अर्बन मॉडर्न होम्स की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि 5 माइल्स के आसपास हो जाना चाहिए, अगर हम मॉडर्न अर्बन होम्स की बात करें, तो आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है या फिजिबल है ये सब करना, अचीव करना? हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने के लिए टीम्स भी उस तरह के लिए प्रॉपरली मिल जाएगी हमको? देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपको देता हूँ कि जिस हिसाब से हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, हम एक्सपांड कर रहे हैं, तो 5 माइल से सामान कहाँ से आएगा? डेफिनेटली नहीं आएगा। गांधी जी ने जब बोला, जब हमारी जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, तो उस हिसाब से उन्होंने बात कर लिया था। बट डेफिनेटली यस कि अगर मैं इस तरीके से यदि उनकी थ्योरी को बात करता हूँ, तो इसको यदि ब्रॉडर वे में यदि बात करूं, तो मैं वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की बात करूंगा, लोकल अवेलेबल मटेरियल की बात करूंगा। हम उसको जितना जल्दी आसपास से प्रोक्योर कर पाए। जरूरी नहीं है अगर मैं इंदौर में कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो इंदौर के 5 माइल्स में देखने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं उज्जैन देवास तक भी जा सकता हूँ कुल मिला के, ये है ना। तो अल्टीमेटली ये है कि हमारे रीजन के आसपास जितना एक लोकल अवेलेबल मटेरियल जो हो जाए, हम उसको अगर यूज करते हो हमारे एरिया का जो एक वर्नाकुलर अप्रोच को फॉलो करें, तो दैट विल बी ऑलवेज अ ग्रेट अप्रोच। क्यों? क्योंकि जैसे हर हर फैमिली का, हर एक इंसान का अपना एक पर्सनालिटी होता है, वैसे ही हर एक शहर का अपना एक पर्सनालिटी होता है। कई एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, जैसे जोधपुर आप देख लीजिए, आप जयपुर देख लीजिए, आप so many cities and abroad and everything, वहाँ कई तरीके से आपके कलर स्कीम्स, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एक जैसे प्लान किए हुए हैं। yes, definitely forms are different, but
they have their own vernacular style of construction. So that's what I believe कि आप इस चीज को आप इसी तरीके से आप अचीव कर सकते हैं until अच्छा अब बात आती है कि मैं तो इस चीज को मॉडर्न मटेरियल से भी आप कर सकते हो आप डेफिनेटली, लेकिन बात वही है कि जो एक टेक्सचर आपको एक मिट्टी देगी वो आपको सीमेंट नहीं दे सकती है। जो आपको एक जो एक ब्रीदेबल बिल्डिंग जो मटेरियल है दैट इज लाइम एंड लाइम मॉर्टर, वो आपको सीमेंट मॉर्टर वो ब्रीदेबल एस्पेक्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कि कोई चीज को जैसा होना चाहिए या उसके जैसा दिखना चाहिए, ये डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। तो ये हुआ तो सबसे पहले पहले सवाल का जवाब कि हम हमारा जो 5 माइल वाला जो रूल एंड रेगुलेशन है उससे बाहर निकल के किस तरीके से देखें। एंड बात आती है कि स्किल लेबर डेफिनेटली वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की यदि बात करूं तो हमारा कई ऐसी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है जो गुजरते समय के साथ साथ उस पर काम करने वाले काफी कम हो गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैं एक बहुत मास्टर मेसन के संपर्क में आया, दाऊद जी, व्हेन आई वाज इन लेपाक्षी, जो सुर्खी लाइन प्लास्टर के ऊपर काम करते हैं एंड लाइन फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उनसे मैं एक कम्युनिटी जॉब के दौरान मुलाकात हुई थी। तो मुझे ये समझ में आया, जो उनसे बातचीत करके मुझे समझ में आया कि आज भी ये सारी चीजें बहुत आसानी से यूज हो सकती हैं, बस उसके लिए हम आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स को अप्रोच करने की, मतलब उस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यदि हम लोगों को नहीं बताएंगे कि ये चीज को इस तरीके से किया जा सकता है, इसके फायदे ये हैं, लोगों को नहीं पता होगा, लोग वही देखते आएंगे कि वहां पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी ऐसा होना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यूरोपियन कंट्रीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, बट वो स्ट्रक्चर्स हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए है ही नहीं। हाँ, हमारे पास कई मजबूरियां हैं, डेफिनेटली है कि हमारे पास कई सवाल आते हैं कि भाई हमारे पास तो प्लॉट साइज नहीं है, हमारे पास तो जमीन नहीं है, हमने इतने बड़े स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अगर आप, मैं छोटा सा एग्जांपल यदि बात करूं, यदि मैं सिंगापुर की बात करता हूं, जहां सबको पता है कि वहां जमीन है ही नहीं, बहुत छोटे छोटे पीसेस में उन्होंने स्ट्रक्चर प्लान किए हुए, सारी चीजें प्लान की हुई, बट वहां पे जिस तरीके से लोकल क्लाइमेट को उन्होंने ध्यान में रखते हुए, प्लस जो वहां पे जो ग्रीन टेरेसेस एंड वेजिटेशन एंड उस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर वहां पे प्लान किया हुआ है, बायोफिलिक डिजाइन को फॉलो किया हुआ है, वो बहुत देखने लायक बात है। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जब हमारे आर्किटेक्ट्स को जब ये पता होगा कि इसको इस तरीके का ओल्ड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, तो जाहिर सी बात है कि पहले तो उनको ही एजुकेट होना पड़ेगा। तो बीइंग एन आर्किटेक्ट हमको पहले उन पुराने लोगों को खोजना होगा कि जिनको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एजुकेट होने की जरूरत है, देन फिर हम आके यहाँ पे लोकली हमारे जितने भी मेसन्स हैं हमारी टीम को है, हमको वहाँ यहाँ पे आके डेफिनेटली उनके लिए वर्क एंड सारी चीजें करनी होगी। तो एक ये पूरा एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, कि पूरी चेन बनानी पड़ेगी, सो दैट उस पर्टिकुलर एरिया का एक वर्नाकुलर स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लोकल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है वो हमेशा जिंदा रहे। बेसिकली एक प्रोसेस है सर जिसको हमको शुरू करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके विद द टाइम एक स्किल्ड लेबर स्किल टीम हमारे पास तैयार होती जाए तो हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे उस तरह से रेगुलर बेसिस। यस ऑफ कोर्स, यस। सर ये जो नेचुरल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है और मटेरियल्स है, इसको हम क्लब करें तो मिनिमलिज्म जो हम चाहते हैं हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में, या जैसे हमारी थॉट प्रोसेस में हम चाहते हैं कि हाउ कैन वी अचीव मिनिमलिज्म आर्किटेक्चर विद दिस नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड टेक्निक्स, अगर इन दोनों को क्लब करें तो कैसा हमारा रिजल्ट आएगा? यस डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूँ तो उसके काफी स्पेसिफिक मटेरियल सेट होते हैं, लेकिन अगर मैंने दूसरी तरफ ये भी चीज कहा कि अगर मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूँ तो ये एक लैंग्वेज है। एंड नेचुरल कंस्ट्रक्शन टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया आता है दैट इज COB, कॉप बिल्डिंग्स की यदि मैं बात करूँ, तो जहाँ पे आपका रैम्ड अर्थ के साथ में हम वहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क है, वॉल क्रिएशन करते हैं, सारे स्ट्रक्चर को हम वहाँ पे शुरू करते हैं बनाना, प्लस उससे अपने एक स्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं जो हम नेचुरल मटेरियल लाइक बैम्बू हुआ या वुडन लॉग्स हुए उसके साथ काम करते हैं। तो वुडन लॉग्स को तो मैं नहीं बोलूंगा कि आज की डेट में आप यूज कीजिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज ठीक है नेचर हमको अलाउ नहीं करता है, हमारे पास उतने जंगल है नहीं, ना हम इस चीज को हेल्दी प्रैक्टिस बोलते हैं आज की डेट में कि हम वहाँ पे लकड़ियों को यूज करें। सो
bamboo will be a major element as a नेचुरल स्ट्रक्चरल सिस्टम। उसके साथ साथ यदि हम वहाँ पे सीओबी मिट्टी की दीवारें रैम्ड अर्थ यदि हम वहाँ पे बनाते हैं तो ये एक हमारे एक नेचुरल सिस्टम हो गया। तो ये तो बात हुई सिस्टम की, ये बात हुई एक मटेरियल की। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि एक लैंग्वेज फॉलो करना, एक मटेरियल होना चाहिए, तो ऑलरेडी वी हैव वन मटेरियल दैट इज अर्थ। अर्थ वॉल से हम वहाँ का जब हम उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं तो यू नीड नॉट टू इन्वॉल्व एनी अदर काइंड ऑफ मटेरियल। कोई आर्टिफिशियल मटेरियल्स आप मत डालिए। बेसिक नेसेसिटी जो आप जो है आपकी, लाइक ओपनिंग्स हैं या जो सारी चीजें हैं, आप वहां पे कई तरीके के स्क्रैप्स, कई तरीके के फिलर्स आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आप दो तरीके की चीजों का आप फॉलो कर रहे होते हैं। डेफिनेटली कई तरीके का चीजों यूज करना का मेरा ये मतलब नहीं है कि आप वहां पे 15 से 20 चीजों, अलग अलग एलिमेंट्स को आपने डाल दिया। डेफिनेटली किसी एक तरीके की लैंग्वेज को आपको फॉलो करना है। एंड जब आप उस चीज को करते हो, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर आप प्रिपेयर करते हो, तो देन इवेंचुअली एट लास्ट आपको ये चीज देखने को आती है कि आपने एक वेरी ब्रीदेबल बिल्डिंग तैयार किया है विथ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ मटेरियल्स। एंड दैट टू आपने एक स्क्रैप जो बाहर जो बहुत एक कचरे की भांति जो फैला हुआ, तो आप एक तरीके से नेचर को आप सपोर्ट करते हो, उस पूरे स्क्रैप को आपने अपनी बिल्डिंग में यूज करते हैं। So this is my way to understand the minimalism in natural techniques and natural materials. सर आपने जब बात की तो आपने बहुत सारे मटेरियल्स के नाम लिए, जैसे कॉग हो गया या काफी सारे, तो मैंने भी कुछ सुने थे जैसे कॉग से काफी सारे मटेरियल नेचुरल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में हम लोग यूज करते हैं। अगर इफ आई टॉक अबाउट योर फेवरेट मटेरियल टू वर्क विद, व्हाट वुड दैट बी? That is definitely earth and lime. I am really in love with lime, बट अनफॉर्चुनेटली लाइम को हमको पहचानना बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। मिलता बहुत कम है, लेकिन मिलता जरूर है। आप उसको किस तरीके से पहचानते हैं, किस तरीके का सही मटेरियल वो है, अगर वो आपको यदि टेक्निक आ गई तो लाइम से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। लाइम से बना हुआ जो मॉर्टर है, लाइम एंड अर्थ को मिक्स करके जो हमारे पास जो एक प्लास्टर या एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो तैयार होता है, दैट इज प्योर ब्रीदेबल मटेरियल। अब यदि मैं एक ये बहुत सिंपल सा सवाल आता है, व्हाट इज ब्रीदेबल? ये ब्रीदेबल बोल रहा है तो क्या ये सांस लेता होगा क्या, या उसकी नाक लगी होगी जिससे वो ऑक्सीजन ले रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होगा? इट्स नॉट लाइक दैट। I mean, when you use this material in a front surface, yeah, inner surface, or you can say it's a main constructive material, that means जो ये एक पैसिव कूलिंग एंड इस तरीके के सारे आपके थ्योरीज को फॉलो करता है, आपको ये बहुत हेल्प करता है। एक बहुत नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में भी बोलूँ तो अगर बाहर गर्मी है तो आपको अंदर ठंडक देगा, अगर अंदर बाहर बहुत ज्यादा ठंडक है तो अंदर ये बहुत ज्यादा एक वार्म इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके देगा। अब ऐसा होता कैसे है? जाहिर सी बात है, जो सरफेस है, एंड लाइम की अपनी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से थर्मल कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें एक पोरोसिटी होती है। लाइम और आप जब मिट्टी को आप मिक्स करते हैं, चूने को, और जब आप मिट्टी को मिक्स करते हैं तो उसके साथ साथ एक स्टेबलाइजिंग के साथ साथ लाइम एक स्टेबलाइजिंग एलिमेंट के जैसे काम करता है। एंड जो अर्थ है उसकी एक जो पोरोसिटी होती है वो एक लाइम के साथ मिक्स करके एक बहुत एक इलास्टिक मटेरियल क्रिएट करता है। तो ये पूरा का पूरा जो बाहर का हीट है या बाहर का जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसको जिस तरीके से अपने सरफेस पे लेके उसको डिस्चार्ज करता है, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। तो आपको बेसिकली ये है कि आपको नेचर पता होना चाहिए, मटेरियल कैसा है वो आपको फिगर आउट करता आना चाहिए, क्योंकि लाइम भी एक ही लाइम नहीं होता। जैसे हम सोचते हैं चूना मतलब एक ही चूना है, चूने के 4 तरीके होते हैं, 4 टाइप होते हैं, वो यू हैव टू फिगर इट आउट। ये 4 टाइप्स में से आपको कौन सा टाइप जो आपके कंस्ट्रक्शन में लेना है। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी जो है वो किस तरीके की मिट्टी है और आपको उसको किस तरीके से यूज करना है। जैसे अगर मुझे कोई बोलेगा आपको तो मालवा में बनाना है, तो मैं बोलूंगा मालवा की मिट्टी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी बहुत ज्यादा क्लेई होती है, हम इसमें नहीं काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसके लिए हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है। सो आप यदि मुझे बोलते हैं कि मेरा फेवरेट मटेरियल क्या है, तो डेफिनेटली आई विल से कि मेरे जो 3 बेसिक एंड फेवरेट मटेरियल, दैट इज फर्स्ट इज लाइम, another is earth, and third one is bamboo. Yes.
थैंक यू सो मच सर, आपसे काफी सारे मुद्दों पे बात हुई। मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है या नेचुरल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होती है, मुझे लगता है अभी भी काफी सारा काम इसमें करने की जरूरत है। काफी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास शायद बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी होंगे कि ये कैसे मेंटेन होगा, ड्यूरेबल होगा कि नहीं, अफोर्डेबल तो फिर मान सकते हैं, पर ड्यूरेबल होगा कि नहीं, विद द टाइम मेंटेनेंस के क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। पर जैसे आप काम कर रहे हैं सर, आप काफी कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हो, उसमें आप काफी जगह ये सब देख के आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है विद द टाइम कहीं ना कहीं हमको इंदौर में भी ये सब देखने को मिलेगा, और एक Yeah, of अच्छी एक course. अवेयरनेस क्रिएट होगी विद द टाइम। Of course, I believe तो so. इस पूरे सेशन के दौरान सर ये मुझे महसूस हुआ कि हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज में हम कैसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग बना सकते हैं। यस, ये हमारा बहुत एक बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज हम जिस नेचर की सारी चीज़ों को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम हमारे प्रेजेंट एनवायरनमेंट को जिस तरीके से खराब कर रहे हैं, तो हम हमारे ऐसे कैसे एफर्ट्स रखें कि हम हमारे उन नेगेटिव एफर्ट्स को कट शॉर्ट करके हम किस तरीके से हमारे नेचर को हम वापस ये सारी चीज़ें इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस को या इस तरीके के मटेरियल्स को यूज करते हो, हम उसको हम हमारी नेचर को एक स्टेबलाइज्ड मैनर में हम उनको कुछ लौटा सके, लाइक। सो थैंक दिस यू इज सो वेरी मच। इंपॉर्टेंट अप्रोच। डेफिनेटली हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, एंड डेफिनेटली वी ऑल वुड लव टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। Thank you so much for joining in for today's session, sir. It was definitely a eye-opener session for me, and hopefully for everyone who has attended. थैंक यू पवन सर। इट्स माय प्लेजर ऑल्सो कि मुझे मेरी सोच है वो आपके माध्यम से रखने का मौका मिला। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रखा है जिसमें हर एक आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अपना जो एक कोर बिलीव है उसके फील्ड के लिए, जो एक वो जिस जिस लैंग्वेज को लेके वो डिजाइन करना चाहता है, वो क्लियरली अपने थॉट प्रोसेस को आपके माध्यम से लोगों को बता सकता है। तो बहुत आपको भी बहुत ज्यादा साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। Bye bye. Bye. बाय।